Hey everyone, welcome back to my channel Study My Buddy. So today we are again with the topic topo sheets. So today we are going to do the contours, gradient and some examples with the topo sheets. So let's get started with that. So basically what are contours? These are the imaginary lines. They are brown in color that tell us the height of a place above the mean sea level. So how the contour looks like, they are like, and these are the contour interval. So what is contour interval? That is difference between height of two successive contours is known as contour interval. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय contour interval एंड टेल द contour ऑफ गिवन प्लेस, वो कैसे बताते हैं वो भी मैं अब आपको बताती हूँ. Now you can see that here is a topo sheet. So you can see that this, what is this, is in that height and contour in meters, contour interval 20 meters. So this is in the question only, it is in the paper only, it is given that it is 20 meters. So it is uniform for 10th standard ICSE that it will be 20 meters. Okay, so now I remove the shared screen. Now are the types of contours. They are steep slope, gentle slope, a hill. Steep slope, gentle slope, and hill. So steep slopes are those when the land suddenly slopes up or down. It is known as a steep slope. In a steep slope, the contours are drawn close to each other as here. I already told you that these are brown in color. See how closely they are located when the land suddenly slopes up or down. Okay, now we have the gentle slope. अब जो ग्रेजुअल स्लोप है ना, जेंटल स्लोप है ना, वो चेंज होती है बहुत ही ग्रेजुअली, स्लोली. तो नॉर्मली ये 1:25 ग्रेडियंट इज कॉल्ड द जेंटल स्लोप. द कॉन्टूर्स इन सच स्लोप आर प्लेस्ड वाइड अपार्ट. जो स्टीप स्लोप था उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजली थी, बट जेंटल स्लोप के अंदर दे आर located far away. They are like this. So these are the gentle slope. Then comes the hill. So for that, a hill refers to a landform having a summit at a high elevation. So हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि this is a hill. So this is a landform having a summit at a high elevation. Summit होता है जैसे वोल्केनो का ये summit होता है जहाँ पर सारा लावा जहाँ से बाहर निकलता है. तो दैट समिट. और हिल का समिट ये है. ठीक है. और जो कॉन्टूर्स ये शो करते हैं ना, कोनिकल हिल, दे आर ऑलमोस्ट सर्कुलर विद अ पीक ऑफ द हिल एज देयर सेंटर. ये इनका सेंटर होता है. ओके. The contours are drawn almost at regular distances, the value of which increases towards the center. जैसे जैसे वो सेंटर में जाते जाएंगे उनकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, increase करती जाएगी. A mountain is higher in elevation than a conical hill and has more contour lines representing it. तो ये थी कुछ contours की types. अब हम करेंगे gradient क्या होता है. So now the question arises that what is gradient? Gradient refers to the slope of land. It determines the steepness of a slope. It is the ratio between the vertical height and the horizontal distance measured along the ground. Horizontal distance. तो ये होता है ग्रेडियंट बेसिकली बाय डेफिनेशन. अगर हम देखें तो अब अगर आपको कहा गया हो कि अ ग्रेडियंट ऑफ 1:5 दिया हुआ है एक उसका हिल का, कि ग्रेडियंट इसका है
स्लोप ऑफ लैंड का 1:5। तो उसका मतलब हम कैसे बताएंगे कि फॉर एवरी 5 यूनिट्स, हर एक 5 यूनिट्स के लिए, फॉर एवरी 5 यूनिट्स देयर इज अ राइज ऑफ 1 यूनिट इन द वर्टिकल डिस्टेंस। तो अब हम इसे ग्रेडियंट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, तो वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, वी आई दैट इज़ वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, एच ई। तो अगर आपको वो कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वी आई कैसे कैलकुलेट करना है। वो कैसे करेंगे? बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर लाइन्स ऑफ प्लेसेस। अगर आपको ये दी हुई है प्लेस, ये एक आपका कॉन्टूर मैंने बनाया है, ये प्लेस है ए और ये प्लेस है बी, ये प्लेस है बी, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया है कि जो बी है ना, वो ए से कुछ दूरी पे है, लेट द डिस्टेंस बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी अब हम कैसे निकाल लेंगे? और ये हमें कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 500 है, और भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं, बट ड्यू टू लेस स्पेस आई एम डूइंग दिस मनी ओनली। सो अब 400 और 500 और ये कुछ के अंदर, उसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम ये कैसे निकाल लेंगे वो अब मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया था 400 और 600, तो अब मैं 600 में से जब 400 माइनस करूँगी तब हमारे पास आ जाएगा वी आई, तो ये आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। अब उसी टाइम हमें कह दें कि एच ई भी निकालना है, किसी क्वेश्चन में कह दें कि हाइट इंटरवल इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो हमने लिया था, तो वो हम एक रूलर की मदद से लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस ए और बी के अंदर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द स्केल लाइन वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। So for HE we have 3 kilometer as, or 300, 3000 meter also we can say, if we convert kilometer to meter. So then we can say that it is 3000 meter, as we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So this is how we calculate the HE. For this अब हमें ये भी पता चल गया है कि हमारी VI कितनी आई है और HE भी हमने निकाल ली है। तो अब हम इजीली हम अपना ग्रेडियंट निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, दैट VI अपॉन HE। तो हमारा VI क्या आया था? 200। ये अभी हमारे पास क्या आया है? हमारा जो HE आई है वो हमारे पास आई है 3000, 2/30। तो ये अब हमारे पास आ गया। तो ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:30। ये एक हमारे पास आ गया आंसर फॉर ग्रेडियंट। तो अभी आपके सामने एक टोपो शीट है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि गिव 4 फिगर ग्रिड रेफरेंसेस ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर सबसे पहला हो हमारे पास सेटलमेंट भामड़ा, तो उसके लिए ये रहा हमारे पास भामड़ा, और ये इस रेड स्पॉट को कहा गया यहाँ पे। तो इसकी जो हमारे पास वो होगी 4 ग्रिड रेफरेंस, वो कैसे हम निकालेंगे? ये देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि नॉर्थिंग्स हैं ये और ईस्टिंग्स हैं तो ये हैं हमारे पास नॉर्थिंग्स और ये हैं ईस्टिंग्स। तो अब हमने निकालना क्या है? भामरा का 4 ग्रिड रेफरेंस। तो इससे एक नीचे वाला और एक इधर वाला देखते हैं। तो नीचे है हमारे पास, ये रहा हमारा भामरा, नीचे है हमारे पास 54, हम कैसे देखेंगे? एक इधर वाला नीचे वाला और एक इधर वाला।
तो इधर वाला हमारे पास आएगा 53, दिस लाइन 53, इसकी फोरग्रिड रेफरेंस आएगी 53, और एक नीचे वाला वो आएगा हमारे पास 43। तो इसकी जो फोरग्रिड रेफरेंस होगी 43 होगी। एक और एग्जाम्पल लेने के लिए अब मैं आपको एक और बताती हूँ। अगर हमें कहा गया हो वो इस लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर अब हमें इस फिगर में कहा गया हो कि फाइंड द फोरग्रिड रेफरेंस ऑफ विलेज मैरोल from the given figure. So here you can see the Merol. So the foreground reference of village Merol will be एक इधर वाला और एक नीचे वाला। तो इधर वाला तो इसका होगा 0308। तो यहाँ पे आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 08 है, ये 09, 010 and so on 11। सो आई होप कि आपको फोरग्रिड रेफरेंस समझ आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो अभी हम और भी बहुत सारी टॉपर शीट्स कवर करेंगे, सो डोंट वरी। तो अब हम आगे चलते हैं सिक्स ग्रिड रेफरेंस पे। सो नाउ द sixth grid reference, it gives exact location of a feature. In sixth grid reference you need to first three digits are the eastings and last three digits are the northings. So how to find the sixth grid reference? So first you need to locate the four grid reference by using first two digits of eastings and northings. For that what we will do, first you need to if I say find the sixth grid reference of the following location. For first I say of spot height 591. So you need to find the 591. Where is that? So you can see here is 591. So for your convenience I have already made the lines. So now you can see that first the foreground reference for this will be 3699, and for the sixth grid reference you need to spot some lines, divide each side of the grid into 10 parts both vertically and horizontally. Now mark the divisions of the eastings and the division of the northings, and where this meet that will be the points you will take. So now you can see that for the location of 591 this is 2 and this is 4, so it will be 362। एक आप यहाँ डालोगे नॉर्थिंग्स के बाद और एक ईस्टिंग्स के बाद, एक आप ईस्टिंग्स के बाद और एक नॉर्थिंग्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो ये एक आ गया आपके पास सिक्स ग्रिड रेफरेंस 591 का। अब एक और एग्जांपल के लिए अब हम लेंगे कि ट्रायंगल 217 का अब हम निकालेंगे। तो फर्स्ट नीड टू सी वेयर लोकेट दैट एंड देन वी विल डू द फॉर दैट। So now for 271 triangle, easting of first division of you can see that easting here is 34 and northern here are 100। एक ब्लैंक आप यहाँ डालोगे इसके बाद और एक इसके बाद, so here I get as 2 here and here as 4। so अब बुक में जैसे हमें दिया हुआ कि 3 और 5, तो अब एक या दो का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें से फर्क का, तो इसका अब आएगा 3411005। हम अब बुक वाला ही ले लेते हैं, नहीं तो अगर आप 2 और 3 भी लोगे तो भी कोई चक्कर नहीं, 2 और 5 भी लोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सो अब अगली वीडियोस में हम और भी करेंगे टॉपर शीट्स। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।